Friends, it's time now for my favorite section about this episode because हम हमेशा जब Q&A की बात करते हैं so ask TG is the thing जो मुझे बहुत पसंद आती है because I get to answer all your questions. So let's see इस हफ्ते हमारे पास में क्या-क्या questions हैं. Hi teacher, which is the better phone between OnePlus 12 and Xiaomi 14 in terms of camera and performance? Okay, so you have asked that आपको जानना है which is the better device between OnePlus 12 and Xiaomi 14 in terms of camera and performance. So let me get this straight. In terms of camera, Xiaomi might jump slightly ahead of the OnePlus 12. Not by a huge margin, but let's say slightly ahead. But if I were to recommend you an overall good product in terms of camera, performance, software, like everything combined, I would recommend OnePlus 12 over the Xiaomi. Considering Xiaomi doesn't have that kind of brand value in that premium segment. OnePlus, has been there for a long time now, or OnePlus 12 is an amazing smartphone overall. If you combine especially the clean experience of Oxygen OS, yeah, even the camera is fantastic. Xiaomi 14 थोड़ा आगे निकल जाता है, but overall, I would say OnePlus 12 would be a better pick. I mean, pretty simple. If you have access to your mobile phone number and अगर आपको वहाँ पे SMS की access है और अगर आपने वो नंबर अपने अकाउंट में ऐड किया है, इट्स प्रीटी सिंपल. यू जस्ट गो टू द पासवर्ड रीसेट ऑप्शंस और जो आपको OTP आपके फोन पे आ रहा है, दैट सिक्योरिटी कोड, जस्ट एंटर दैट एंड गूगल शुड लेट यू रीसेट योर पासवर्ड. So just use a different device to log in. Pop in your SIM card एक दूसरे फ़ोन में जहाँ पे अगर आपको SMS दिख रहे हैं आते हुए, those SMS coming into your phone, maybe you can borrow someone's phone in family. और उसके बाद में आप Google पे जब log in करने जाएंगे, if you follow the instructions, it might guide you कि आपके फ़ोन पे एक OTP आने वाला है, that security code of Google, and easily you can reset your password. ऐसा कोई ऐप है जिससे एक फ़ोन से 5-6 स्पीकर्स या ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं? If you want to connect 5 to 6 speakers or earphones, well, I'm not sure what you are up to if you want to set up a party scene all together. तो definitely आप किसी ऐप से तो ये काम नहीं कर पाएंगे. There are a few phones that support multiple Bluetooth devices, but वो भी मैंने जहाँ तक देखा है, it's limited to only 2. कि आप 2 ईयरफोन्स या 2 स्पीकर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं via Bluetooth. Alternatively, what you can use is there are multiple splitters. तो इट्स अ हार्डवेयर डिवाइस जो अपने आप फ़ोन में अटैच करते हैं और वहाँ पे आपको एज एन आउटपुट मल्टीपल 3.5 mm वाले जैक्स मिल जाते हैं. सो यू कैन कनेक्ट मल्टीपल वायर्ड स्पीकर्स और ईयरफोन्स और समथिंग. वो यू कैन ट्राई इफ योर फोन सपोर्ट्स दैट. अदरवाइज सैडली देयर इजंट एन ऐप जिस ऐप की मदद से आप 5 या 6 ईयरफोन्स या स्पीकर्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाएंगे. बट हाँ, देयर इज वन सोल्यूशन इफ यू रियली वांट दैट, कि इफ यू ट्राई गेटिंग स्पीकर्स फ्रॉम द सेम ब्रांड, लाइक फॉर एग्जांपल सोनी और JBL, and their models which are compatible with each other, तो आप उन स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. दैट इज एन ऑप्शन, बट नॉट फ्रॉम द फोन. वो स्पीकर्स आपस में कनेक्ट होंगे एंड यू कैन एसेंशियली प्ले द सेम थिंग इन दोज स्पीकर्स. कुड बी एप्पल्स HomePod, कुड बी दोज JBL और Sony स्पीकर्स, Marshall स्पीकर्स इन फैक्ट. तो वो हो जाते हैं सैडली नॉट फ्रॉम द फोन. हाय TG, कैसे पता चलता है कि एक फ़ोन क्लासिक या विंटेज बनेगा? क्या आप भी फ़ोन्स कलेक्ट करते हो? Well, definitely I collect lots of phones in my collection. मेरे पास में बहुत सारे phones हैं. And speaking of कि पता कैसे चलता है, so आपको देखना होता है कि what is that special feature जो वो फ़ोन लेके आ रहा है. Is it the first one? Is it the last one? या कुछ ऐसा iconic है क्या उस फ़ोन के साथ में? For example, if you look at the first iPhone, well, it's iconic and it holds immense value. अगर हम बात करते हैं नोकिया की, तो नोकिया 808 PureView, इट वॉज द फोन दैट केम विद 41 मेगापिक्सल्स कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज डेफिनेटली आइकॉनिक. और मे बी द नोकिया लुमिया 1020, अगेन वेरी आइकॉनिक फोन. अगर हम सैमसंग की बात करते हैं, सो लेट्स से द सैमसंग मैट्रिक्स फोन जो एक मूवी में भी यूज हुआ था, और मे बी द फर्स्ट सैमसंग फोल्ड फोन. लाइक फोल्ड 5 आ चुके हैं, बट द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली द मोस्ट आइकॉनिक. सो हमको देखना होता है कि क्या फोन लेके आ रहा है नया.
बट इफ इट्स अ जेनेरिक स्मार्टफोन, फॉर एग्जांपल द फोन दैट वी कवर्ड टुडे, द Narzo 70 Pro, अब वो फोन मार्केट में इकलौता नहीं है, देयर आर मल्टीपल फोन्स सिमिलर टू दैट वन, सो वो कभी भी कलेक्टर्स फोन नहीं बनेगा. बट मे बी टुमारो इफ एप्पल कम्स अप विद अ फोन जो कि एक फोल्डिंग आईफोन हो, तो फ्यूचर में उसकी वैल्यू होगी. सो हमको देखना होता है कि वो फ़ोन में क्या नया है या क्या स्पेशल है जिसकी वजह से वो एक कलेक्टर्स फ़ोन बन पाएगा इन फ्यूचर.